Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the mixed question which are based on equivalent mass. It means आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन जो कि किस पर बेस्ड है, इक्विवेलेंट मास पर. सो लिसन, फर्स्ट क्वेश्चन इज लिसन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ, लिसन, फर्स्ट वन इज CH3COOH. It means you have to calculate the equivalent mass of CH3COOH. What is this? This is acetic acid. This is acetic acid. We all know that the formula of acetic, the chemical formula of acetic acid, it is CH3COOH. Now we will apply the formula of इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड. इट मींस CH3COOH का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड. वी ऑल नो दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड. तो हमेशा ये याद रखना है, अगर यहाँ एसिड है तो एसिड की हमेशा होती है बेसिसिटी. सो लिसन, नाउ what is the equivalent mass of CH3COOH? It will be equal to molecular mass of CH3COOH divided by basicity of CH3COOH. So now we will calculate the molecular mass of CH3COOH. So molecular mass of CH3COOH, it will be equal to sum of the atomic masses of all the elements present in the CH3COOH. इट मीन जो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा, ये इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास के सम के बराबर होगा. सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट हियर? 2. सो कार्बन एटम, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? 3 plus 1 means 4. So 4 into atomic mass of hydrogen plus how many oxygen atoms are there? 2 into atomic mass of oxygen. Now we will calculate it. So 2 into the atomic mass of carbon is 12 plus 4 into 1 plus 2 into atomic mass of oxygen, it is 16. So now solve it. It is 24 plus 4 plus 32. It is, listen, it is 36 plus 24. 36 plus 24, it means it will be 60. So molecular mass of CH3COOH, it will be 60 gram. It will be 60 gram. It means जो CH3COOH है उसका मॉलिक्यूलर मास हमने कितना कैलकुलेट किया? 60 ग्राम. Now what will be its बेसिसिटी? ये एसिटिक एसिड है और एसिड की हमेशा होती है बेसिसिटी. तो इस एसिटिक एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? इट मींस बेसिसिटी विल बी व्हाट? वी ऑल नो दैट एसिटिक एसिड गेट ब्रेक इनटू CH3COO माइनस आयन प्लस H प्लस आयन. जो एसिटिक एसिड है वो किसमें टूटता है? CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन में. इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एसिटिक एसिड है CH3COOH ये एसीटेट आयन में टूटता है. दिस इज CH3COO माइनस आयन, दिस इज व्हाट? एसीटेट आयन. एंड 1 H प्लस आयन. H प्लस आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन. So listen, what is the basicity of CH3COOH? So basicity will be equal to number of hydrogen ions obtained by the acid. हमें पता है एसिड हमेशा कौन सा आयन बनाते हैं? H प्लस आयन बनाते हैं. और बेस हमेशा कौन सा आयन बनाते हैं? OH माइनस आयन बनाते हैं. So listen, so the basicity equal to number of H plus ion obtained. So how many number of H plus ion obtained? It is 1. So basicity of acetic acid, it is equal to 1 and the molecular mass of acetic acid, it is 60.
So answer will be 60 by 1, it means 60. So the equivalent mass of CH3COOH, it will be 60. This will be your answer. So listen, this is the case of acetic acid. Now we will discuss the second question. Equivalent mass. Calculate the equivalent mass of AlOH का whole of thrice. It means aluminum hydroxide. This is aluminum hydroxide. You have to calculate its equivalent mass. So this is a base. AlOH का whole of thrice क्या है? बेस. सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमें क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है. So listen, it will give. So listen, AlOH का whole of thrice, it will give Al plus 3 ion and 3 OH minus ion. हमें पता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है. Why it is a base? Because base always give OH minus ion. क्योंकि बेस हमेशा कौन सा आयन देता है? OH minus ion. इसलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है. इट मीन्स हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस. जैसे हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. तो बेस के केस में फार्मूला क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय बेस की होती है एसिडिटी. बेस की क्या होती है? एसिडिटी. इट मीन्स हम यहाँ पर बेसिसिटी से ना डिवाइड करके इस बार किससे डिवाइड करेंगे? एसिडिटी से डिवाइड करेंगे. क्योंकि हमेशा हमें पता है जो बेस होता है, बेस की हमेशा क्या होती है? एसिडिटी. नाउ लिसन, नाउ equivalent mass of AlOH का whole of thrice will be what? Molecular mass of AlOH का whole of thrice, it is 75. And what is the acidity of aluminum hydroxide? Aluminum hydroxide की acidity क्या होगी? तो जैसे हमने अभी देखा एसिटिक एसिड की एसिडिटी किसके बराबर होती थी? ये एसिड है. एसिड हमेशा कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन देता है. तो जितने H प्लस आयन बनते थे वही उसकी एसिडिटी हो जाती थी. इसी तरह बेस के केस में जितने OH माइनस आयन होंगे या हाइड्रोक्सिल आयन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी. क्या हो जाएगी? उस बेस की एसिडिटी हो जाएगी. इट मीन्स हेयर एसिडिटी ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? इट इज 3. यहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है? 3. सो लिसन, it is 3 and the molecular mass of AlOH का whole of thrice, it is what? 75. जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे, then it will be equal to atomic mass of aluminium plus 3 into atomic mass of oxygen plus hydrogen. क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितनी बार आया है? 3 बार आया है. इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जोड़कर हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. इट मीन्स वी कैन राइट एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27 प्लस 3 into what is the atomic mass of oxygen? It is 16 and atomic mass of hydrogen is 1. 16 plus 1 17. It means 17 into 3. It will be 27 plus 51. So listen, it will be equal to 78. So 27 plus 51, it will be 78. Now it will become 78 by 3. 78 by 3. Now your answer will be
26 gram. So your answer will be 26 gram. So for the molecular mass of aluminum hydroxide, it will be 78 by 3. It is 26 gram because molecular mass of aluminum hydroxide is the atomic mass of aluminum plus 3 into atomic mass of oxygen plus hydrogen. So listen, atomic mass of aluminum it is 27 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1. तो 16 और 1 17, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51 और 27 एल्युमिनियम का, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 78. सो एसिडिटी विल बी 3. सो नाउ वी विल पुट दीज टू वैल्यूज इनटू दिस फार्मूला. इट विल बिकम 78 by 3 and it is equal to 26 gram. Now what is the equivalent mass of OH minus ion? So equivalent mass of OH minus ion, this is ion. It means we will apply here the formula of equivalent mass of an ion. ये आयन है इसलिए हम लोग यहाँ पर equivalent mass of ion का फार्मूला अप्लाई करेंगे and it is mass of ion divided by वैलेंसी ऑफ आयन. और जो वैलेंसी होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होती है. हमने बताया था साइन को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 1. तो OH माइनस की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी 1 और OH माइनस का जो मास होगा वो OH के मास के ही बराबर होगा क्योंकि हमें पता है OH माइनस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास के बराबर होगा एंड इट विल बी 16 plus 1. इट मीन्स व्हाट 17. ये 17 के बराबर होगा. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ OH माइनस आयन इट इज 17 by 1. सो इट इज इक्वल टू 17 ग्राम. क्योंकि 1 क्या है OH माइनस की वैलेंसी है. वैलेंसी क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन. जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ही क्या होता है वैलेंसी होता है. तो -1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg+2. सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg+2? सो इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg+2 इक्वल टू मास ऑफ Mg+2 इट इज 24 डिवाइडेड बाई वैलेंसी ऑफ Mg+2 बिकॉज दिस इज आयन. ये पॉजिटिव आयन है तो आयन का क्या होती है वैलेंसी. तो वैलेंसी यहां पर कितनी है 2 क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 2. सो आंसर विल बी 12 ग्राम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट मास ऑफ CH3COO माइनस आयन. व्हाट इज दिस? दिस इज एसीटेट आयन. ये कौन सा आयन है एसीटेट आयन. तो यहां भी इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन का ही फार्मूला लगाएंगे and it is mass of acetate ion divided by valency. So acetate ion का मास जो होगा वो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें तो 1 यूनिट मास कम हो जाएगा. तो इसका मास होता है 60. तो CH3COO का मास हो जाएगा 59. So listen, divided by valency of CH3COO minus ion it is 1. So answer will be 59 by 1. It is 59. Now equivalent mass of NO3 minus ion it will be mass of NO3 minus ion divided by valency. So mass of NO3 minus ion it will be 62 and valency will be magnitude of charge. तो यहाँ चार्ज है -1 तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा साइन को छोड़ देंगे वही मैग्नीट्यूड. इट मीन्स मैग्नीट्यूड होगा 1. सो आंसर विल बी 62 by 1. इट मीन्स 62 ग्राम. सो मास ऑफ NO3 minus you can calculate. It will be the sum of the atomic masses of nitrogen plus 3 into atomic mass of oxygen and it is what? It is 14 plus 3 into 16 equal to 14 plus 48. It is 2, 5 और 1 6. So 62 ग्राम. It means जो molecular mass of NO3 minus है ये कितना आया हमारा 62 आया. वैलेंसी कितनी है 1. यहां से तो दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 62 ग्राम. सो दीज आर दी सम मिक्स्ड क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन
equivalent mass. So note down all the questions, all the numerical problems.